مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آئیے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں گے انشاءاللہ، اور اپنی گفتگو ہم اللہ کی توفیق سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے مل کر دعا فرمائیں، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اس کائنات میں جو سب سے اچھا کام ہے، سب سے بہتر کام ہے، سب سے بڑا کام ہے، سب سے عمدہ کام ہے، جو سارے نبیوں کا مشن رہا، سارے نبیوں کا وظیفہ رہا، سارے نبیوں کا طریقہ رہا، وہ کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانیت کو دعوت دینا، انسانیت کی تعمیر کرنا، انسانوں کو بنانا، انسانوں کو سنوارنا، انسانوں کے دلوں کو پاک و صاف کرنا، انسانوں کا تزکیہ کرنا۔ یہ اس کائنات میں سب سے بڑا کام اور سب سے بہتر کام ہے۔ جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اشاعت اسلام کے لیے یا خدمت اسلام کے حوالے سے یا دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے آپ نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں، کتنی آپ نے مصیبتیں جھیلی، کتنی پریشانیاں آپ نے جھیلی ہے۔ مکے کا کون سا ایسا علاقہ رہا ہے، مدینے کا کون سا ایسا علاقہ رہا ہے جہاں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ پڑے ہوں، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ اور زندگی کی سب سے بڑی مصیبت اور آزمائش اگر آپ کو آئی ہے وہ اسی دعوت و تبلیغ کے راہ میں آئی ہے۔ قربان جائیں، اتنی ساری آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں چھوڑا، اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام پوری حیات طیبہ اسی مشن پر لگے رہے، اور جانتے ہیں آپ علیہ السلام نے کیا مثال دی؟ ان مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال
اپنی امتیوں سے آپ نے فرمایا کہ میری مثال تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی، چراغ روشن کیا، روشنی کو اس نے جلایا، اس کو دیکھ کر کے کیڑے مکوڑے پتنگے چلے آ رہے ہیں اور یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ ان کو بھگا رہا ہے کہ آپ جل جاؤ گے، اس میں جل جاؤ گے، بھسم ہو جاؤ گے، لیکن کیڑے مکوڑے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی مثال لکھا، یہی میرا حال ہے، تم ہو جہنم کی طرف جا رہے ہو اور میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے کھینچ کر کے جنت کی طرف لا رہا ہوں۔ جانتے ہیں آپ 23 سالہ نبوت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزارا، حجۃ الوداع کا موقع آیا، پھل دیکھے، نتیجہ دیکھے، محنت آپ کریں گے، نتیجہ آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا۔ 23 سال کا دور آپ علیہ السلام نے مکمل کیا۔ حجۃ الوداع کا مجمع ہے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے حیران ہو جائیں گے۔ آپ اکیلے اس امت کے سب سے پہلے مسلمان تھے، آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، 23 سال مکمل نہ ہوئے، 1,40,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، سنو، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میرے صحابہ کرام، کیا میں نے اللہ کے دین کو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ میں نے تم تک نہیں پہنچا دیا؟ اللہ کے پیغام کو میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ کرام نے من جملہ اکٹھا ہو کر کے کہا، یا رسول اللہ قد بلغتا وادیتا ونصحتا، یا رسول اللہ، کہا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے دین کو امانت داری کے ساتھ، آپ نے پوری دیانت داری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ آپ نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ اسی پر بس نہ کیے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، تو آسمان والا اللہ تو بھی گواہ رہو، زمین والی ساری مخلوق نے گواہی دے دی ہے کہ میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا، اے اللہ تو بھی گواہ رہو۔ اس کے بعد جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیغام دیا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، یہاں جتنے میرے سامنے حاضر ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں نہیں ہیں ان تک اللہ کے دین کو پہنچائیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ قربان جائیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، دعوت و تبلیغ کے مقصد سے، اشاعت دین کے حوالے سے، ارشاد و نصیحت کے حوالے سے پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے نہیں، صحابہ کرام جہاں گئے جا کر کے بس گئے، سبحان اللہ، اور وہیں پر سپرد خاک ہو گئے، وہیں پر ان کی قبریں بن گئی۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی قبریں بمشکل 2000-3000 صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی۔ 1 لاکھ صحابہ کرام تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ان صحابہ کرام کو مدینے سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان صحابہ کرام کو مکے سے محبت نہیں تھی؟ سبحان اللہ، کیا ان صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا خانہ کعبہ میں 1 وقت کی نماز پڑھنا 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے؟ کیا ان صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا مسجد نبوی میں 1 وقت کی نماز پڑھنا 1000 نماز کے برابر ہے؟ انہیں معلوم تھا، انہیں پتا تھا، لیکن وہ جانتے تھے اس سے بڑا کام ہے، پوری دنیا میں جو سب سے بڑا کام ہے، لوگوں کو ظلمتوں سے نکالنا، لوگوں کو تاریکیوں سے نکالنا، لوگوں کو کفر و شرک سے نکالنا، لوگوں کو رسوم و رواج سے نکالنا، لوگوں کو بدعات اور خرافات سے نکالنا، توحید کی روشنی میں لا کر کے کھڑا کرنا، توحید کے شاہراہ
चेहरा पल्ला करके खड़ा करना। सहाबे कराम जानते थे ये दुनिया का सबसे बड़ा सुभान अल्लाह काम है। अल्लाह से दुआ फरमाए, ये मेरे इतने सारे मुसल्ली हैं, नौजवान भी हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, आपसे मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में इस हवाले से आयात भरी पड़ी हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बेशुमार भरी पड़ी है। मैं एक आयत करीमा पढ़ूं और वो सूरह मुबारका की आयत करीमा तिलावत करूंगा जो उमर इब्ने खत्ताब के दिल के करीब थी। सुभान अल्लाह, ये जुमा का मौका है, मैं आपसे जवाब नहीं ले सकता हूं। उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक दिल के करीब एक सूरह थी जिसको बोल, इनको उठाइए, अजीब लोग हैं, अजीब तमाशा है। दुनिया जहाँ की सैर करके आते हैं और अल्लाह के घर में बड़ा सुकून मिलता है। दुआ करें अल्लाह सुकून अता फरमाए, लेकिन दिल का सुकून अल्लाह अता फरमाए, चैन अल्लाह ताला नसीब फरमाए। देखो अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल के करीब एक सूरह थी जिसको सूरह यूसुफ बोलते हैं। कौन सी सूरह है? सूरह यूसुफ। सुभान अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब इसकी बड़ी कसरत से तिलावत करते थे। सूरह यूसुफ की एक आयत करीमा है। अल्लाह ने क्या कहा? कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। एक एक आयत करीमा, इस एक आयत करीमा का एक एक लफ्ज गौर से सुनने के काबिल है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ऐ मेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है। अल्लाह कह रहा है, किससे कह रहा है? नबी से कह रहा है कि ऐ नबी आप दुनिया वालों से कह दीजिए ये मेरा रास्ता है। कौन सा रास्ता? दावत का रास्ता, तबलीग का रास्ता, इस्लाह का रास्ता, इरशाद का रास्ता, नसीहत का रास्ता, रहनुमाई का रास्ता, खैर ख्वाही का रास्ता, भलाई का रास्ता। ऐ मेरे हबीब मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है। और जानते हैं और आगे क्या कहिए? अदू इलल्लाह, दुनिया में दावत देने वाले बहुत है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, जरा सुनिए ना इंशाअल्लाह। दुनिया में दावत देने वाले बहुत हैं। आप अलैहिस्सलाम ने सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कितने ऐसे दुआत मिलेंगे। कौन मिलेंगे? दुआत मिलेंगे, मुबल्लिगीन मिलेंगे जो आपको बुलाएंगे। उनके बुलाने का मकसद ये है आपको जहन्नम में ढकेलना है। आप वाज़े करें आपकी दावत क्या है, आप किसकी तरफ बुला रहे हैं। मैं इस मिंबर रसूल से पूरी जमीयत का एक अदना खादिम होने के नाते मैं ऐलान करता हूं हमारी दावत है अल्लाह की तरफ है और हमारी दावत है प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये ऐलान कीजिए, आप गुलाबी मत बनिए, गुलाबी मत बनिए, आप खुल करके अपनी दावत को वाजे कीजिए। अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ऐ मेरे नबी वाजे करो आप कि आप किस चीज की तरफ दुनिया को बुलाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अदू इलल्लाह, बोलिए ना, अदू इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ तुम्हें दावत देता हूं। अला बसीरा, इल्म के साथ, रोशनी के साथ, बसीरत के साथ, हिकमत के साथ, दानाई के साथ। कोई जाहिल आदमी बगैर पढ़ा लिखा वो दावत का काम नहीं कर सकता है। पहले नबियों पर वही नाजिल हुई है, नबियों ने पहले इल्म हासिल किया है, उसके बाद दावत का काम किया। ये गुमराह मुबल्लिगीन, ये जोहला जो दावत का काम कर रहे हैं, आओ हमारा पैगाम है सीधे सादे अंदाज में पहले मसाजिद में हो या मदारिस में हो, उलमा की सोहबत में रहो, इल्म हासिल करो और दावत का काम करो। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जानते हैं और सुनिए ना, अगर दावत का काम मैंने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, जानते हैं नुकसान क्या होगा? ये गुमराह मुबल्लिगीन, ये बुरे उलमा तुम्हें पकड़ लेंगे, भेड़िया शिकार कर लेगा, भेड़िए के शिकार हो जाओगे, अकीदा भी खराब, ईमान भी खराब, सुन्नत भी खराब, और इसी तरीके से हराम खोरी में पड़ जाओगे, बिदात में पड़ जाओगे। सुभान अल्लाह। अगर मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गए, जैसे कोई कश्ती का मल्लाह होता है, कश्ती चलाने वाला होता है, अगर ये अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाए तो कश्ती साहिल साहिल पर पहुंचने के बजाय ये भंवर में फंस जाएगी। और आसान मिसाल लो, कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, वो सामने नजर होने के बजाय वो दाएं और बाएं देखे, पीछे देखे,
आंखें बंद कर ले या सो जाए तो गाड़ी ये हादसे का शिकार हो जाएगी। मेरे भाइयों, इसलिए मेरी आपकी जिम्मेदारी ये है, दावत की अहमियत को समझो, उसके तकाज़ों को समझो, उसके मकासद को समझो, उसके फराइज को समझो। अगर मैं सो गया, आप सो गए, ये उलमा सो गए, ये मुस्लिहीन सो गए, ये जिम्मेदारान सो गए, ये इसी तरीके से मुखय्यरीन सो गए जो अल्लाह की राह में अपना माल लगाते हैं। अगर ये अगर इन्होंने दावत को छोड़ दिया, अगर ये सो गए, याद रखो भेड़िया पूरी कौम का शिकार करेगा। ये गुमराह मुबल्लिगीन, ये बुरे उलमा, ये उलमाए सू पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लेंगे। और आज ये जिम्मेदारी बढ़ रही है, इंशाअल्लाह बोलो, आज ये जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसे हल्के में ना लो, सुन करके ना चले जाओ। अल्लाह की कसम है, अल्लाह से वादा करो कि जो बातें सुनूंगा इंशाअल्लाह, परवरदिगारा मरने से पहले कुछ करके जाऊंगा इंशाअल्लाह बोलो, मरने से पहले कुछ करके जाओ, वरना कल किसी और का जनाजा हमने पढ़ा, मेरा भी पढ़ा जाएगा और आने वाले दिन में तुम्हारा भी पढ़ा जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी की मकसद को समझो। बात बहुत साफ है, कुरान ने भी साफ कहा है ना, और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी साफ कहा है। साफ बात कहनी चाहिए। सुनिए ना, जानते क्या होगा, मैंने कहा फितने ने चारों तरफ से अपनी लपेट में ले लिया है। चौमुखी हमला है इस्लाम पर, चौमुखी हमला है मुसलमानों पर, और खास तौर पर ये हमारा जो नौजवान है ना, ये भटका हुआ है। क्या ये हमारा नौजवान ये भटका हुआ है। कोई भी टाई लगा करके, कोट पहन करके, कैमरा लेकर के, स्टैंड लेकर के, स्टेज बना करके और दुनिया भर की जहां की सजा करके आकर के यूट्यूब चैनल पर बैठ गया। हमारा नौजवान उसके वीडियो शेयर कर रहा है। अरे कभी तुमने सोचा है उसकी दावत क्या है, किसकी तरफ वो बुला रहा है, उसका मनहज क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है? हमारे नौजवानों को मैंने देखा है, कोई इंजीनियर है, कोई प्लम्बर है, कोई डॉक्टर है, ये दाई बन करके बैठे हैं। उलमा मर गए हैं क्या? ये उलमा जिंदा है। याद रखो, जिस दिन इस रुए जमीन पर एक आलिम ना रहेगा, रब्बे जुल जलाल की कसम है, वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। कौन सा दिन होगा? वो आखिरी दिन होगा। इसलिए उलमा से जुड़ो, धोखे में ना खाओ। कोई टाई और पैंट और कोट और चश्मा और स्टेज और यूट्यूब चैनल बना करके आ गया, वो आलिम नहीं हो सकता है, वो आलिम नहीं हो सकता है। वो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई प्लम्बर है, कोई फला है, ये दावत का काम कर रहे हैं। उलमा मर गए हैं क्या? तुम्हारे अरे मैं आलिम नहीं हूं, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं। अब मैं अपने से अकाबिर उलमा की बात कर रहा हूं। इनकी सोहबत में रहो इंशाअल्लाह बोलो, इनके इल्म से फायदा उठाओ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और वक्त बड़ी तेजी से भाग रहा है। आपकी गफलत आपको ले डूबेगी और मेरी गफलत मुझे ले डूबेगी। मैं गाफिल हो गया तो मेरी दुनिया आखिरत बर्बाद होगी, और आपने अगर गफलत की तो आप भी अल्लाह के अजाब से बच नहीं पाओगे। सुनिए ना, ये मेरी अपनी बातें नहीं है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। कहिए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो हदीस सुनिए, आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हुदैफा इब्न यमान इस हदीस के रावी है, कहते वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्ना बिल मारूफ व लतनहउन्ना अनिल मुनकर औ लयुशिकन्नल्लाह अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिनहु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम। रब की कसम खा करके कहता हूं, कसमें बहुत कम खाता हूं, लेकिन इस एक हदीस को एक एक लफ्ज पर गौर करना, सुनना सुनना सुनना, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बार बार सुनना और बार बार पढ़ना। और ये जो पेशीन गोई थी प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान था, क्या सच है कि नहीं सच है? आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुमने मारूफ का काम छोड़ दिया, मुनकर की नकीर अगर तुमने छोड़ दी, अगर भलाई का काम छोड़ दिया, बुरे लोगों को टोकना तुमने छोड़ दिया। मैंने शुरू में कहा ना, हम जरा मीठे मीठे बन गए हैं। चलने दीजिए, चलने दीजिए मौलाना, चलने दीजिए। ये चलने दीजिए कौन से दीन में आया है? हम मीठे मीठे बन गए हैं ना। मीठे मीठे ना बनो, अपना मकसद वाजे करो, अपनी दावत वाजे करो, अपना पैगाम वाजे करो। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जब तक अगर बुराइयों पर टोकना तुमने छोड़ दिया, अगर तुमने भलाई का काम छोड़ दिया, याद रखो, याद रखो, दुआ ये मोमिन देखो
क्या कहूँ मैं। ये अजीब तमाशा है, ये मैं और मेरी फैमिली, मैं और मेरी बिजनेस, मैं और मेरा कारोबार, मैं और मेरी तिजारत, मैं और मेरे बाल बच्चे, इसी में हम जी रहे हैं, इसी में हम जी रहे हैं। याद रखो, तुमने क्या समझा है, तुम पर कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। और जिस दिन मुसीबत आ गई, अल्लाह ना करे, आमीन बोलो ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी मुसलमान पर कोई मुसीबत आए, लेकिन आ गई तो दुआ ये मोमिन का हथियार है। तुम दुआ के लिए हाथ उठाओगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा, दुआएं अल्लाह रद्द कर देगा, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी दुआएं मार दी जाएगी। दावत का काम अगर मैंने छोड़ दिया, दावत का काम अगर आपने छोड़ दिया, इसलिए मेरे भाइयों, मैं यहां से इस मिंबरे रसूल से ये बात मैं आपको बता रहा हूं और पैगाम दे रहा हूं, हम सलफी हैं, हम अहलुल हदीस हैं। मेरी आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जरा हमें दुनिया के सारे फितनों का भी मुकाबला करना है और मुझे और आपको सबकी सलाह करनी है। इंशाअल्लाह बोलो ना, इंशाअल्लाह ताला मुशरिकीन के पर काम करना है, मुनाफिकीन पर काम करना है, काफिरों पर काम करना है, खबर परस्तों पर काम करना है। इसी तरीके से मुर्दों से मांगने वाले हैं, उन्हें भी समझाना है, हदीसों का इनकार करने वाले, इन्हें भी समझाना है, जानियों को भी समझाना है, शराबियों को भी समझाना है, गुनहगारों को भी समझाना है, बेनमाजियों को भी समझाना है। अरे आप अहलुल हदीस हैं, आप वाज़े तौर पर कहें आप सलफी हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। बोलो, आपने क्या समझा है, हल्के में ले रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों, हमें और आपको और मुझे आप बताइए, इस रोए जमीन पर कौन सी वो जमात है जो तौहीद का काम कर रही है? कौन है वो जमात जो लोगों को सुन्नत की दावत दे रही है? कौन है वो जमात जो सहाबा के तरीके की दावत दे रही है? कौन है वो जमात जो इमामों के जो अक़वाल है, फरामीन है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, उनके एहतराम की दावत दे रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, वो आप हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। इसलिए मेरे भाइयों, लोगों ने दावत के नाम पर भीड़ इकट्ठा की है, लोगों ने दावत के नाम पर पब्लिक को इकट्ठा किया है। हमने दावत के नाम पर अल्लाह के कुरान को दिया है और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को दिया। मुझे बताइए, कितने मसाजिद में दर्स कुरान होता है, कितने मसाजिद में अहादीस का दर्स होता है? वो आपकी मस्जिदों में होता है, वो सलफियों की मस्जिदों में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, और सुनिए ना, जरा हमारे अंदर भी खराबी आ गई है, सुन लीजिए ना। हम भी क्या बोलते हैं, हम 100 साल हमारी कदीम जमात है, बहुत पुराने हैं हमारी जमात बहुत कदीम है, हम बहुत दिनों से हम बाप दादाओं के कारनामों पर फख्र करने वालों, तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? आप अपनी बात बताइए ना। आप कदीम जमात है, अच्छी बात है, 100 साल पुरानी अच्छी बात है, आपने क्या किया है? जरा आपके कारनामों को बताइए। ये कौन से पन्ने में लिखा है कि बाप दादाओं के कारनामे को बताया जाए और आप अमल में 0 0 हैं? हम सो गए हैं मेरे भाइयों, हम सो गए हैं। और इसीलिए नामो निशान मिट जाता है उस कौम का जो सो जाती है। शायर ने बड़ा अच्छा कहा, कहता है कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है। शायर बोलता है कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत का ज़वाल आता है। आज जानते हैं कितनी ऐसी पुरानी जमातें थी, पुराने लोग थे, कदीम जमात थी, वो सो गए। आज उनके घरों में बिदअतें आ गई हैं, शिर्क आ गए हैं, खुराफात आ गए हैं, उनके बच्चे नाफरमान हो गए हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं। और जानते हैं जहेज वो लेने वाले हैं, जहेज देने वाले हैं, सूद खा रहे हैं, सूद दे रहे हैं मेरे भाइयों, शिरकिया काम कर रहे हैं। और उनके घरों में दूसरी जमातें घुस करके ये बिदअत की दावत दे रही है या नहीं है? अगर आप मधु बन गए, दुनिया दाई बन करके आपके घरों में घुस करके बिदअत का काम करेंगे। हम सो गए हैं, जागेंगे इंशाअल्लाह। पीछे से इंशाअल्लाह
कब तक सोओगे मेरे भाइयों? जागो, और अब नहीं जागे तो तुम्हारे घरों में घुस करके ये गुमराह लोग, ये गुमराह मुबल्लिगीन तुम्हारे घरों में घुस करके बिदात को फैलाएंगे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। 2 मिनट बाकी बचा है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा वक्त पर इंशाअल्लाह। मैंने भी ठान लिया है, दुआ करें अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। जहां बात मर्दों की हो रही है, मैंने कहा गफलत में नहीं आना, सोना नहीं, इस फख्र में नहीं जीना। हम बहुत पुराने हैं, हम कदीम लोग हैं, आप इस फख्र में जिएंगे। गुमराह मुबल्लिगीन आपके घरों में घुस करके बिदात का काम करेंगे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, नाफरमान हो रहे हैं। और बात जब दावत और तबलीग की है तो खवातीन का भी रूल कम नहीं रहा है। अल्लाह का शुक्र है, इस मस्जिद में, ये वाहिद मस्जिद है जहां उम्मत की माएँ बहनें आती हैं। दुआ करें अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, खवातीन भी आती है ना, तो वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। औरत अगर माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, सास है, ननंद है, औरत किसी भी रूप में है, सुभान अल्लाह, उसे अपने दायरे में रह करके गांव गांव घूम कर नहीं, शहर शहर घूम कर नहीं, करिया करिया घूम कर नहीं, उसे अपने, और जानते हैं औरत की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया उसका घर है। क्या है? औरत जितना ज्यादा घर में रहेगी, अल्लाह की कसम ये महफूज रहेगी। कुरान ने कहा वक़रन फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। ऐ मेरे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप कह दीजिए, ये उम्मत की माएँ बहनें, ये खवातीन अपने घरों में रहे। सुभान अल्लाह, एक औरत जितना घर में रहेगी ये महफूज रहेगी। घर में रह करके दावत व तबलीग करे, शौहर पर मेहनत करे। किस पर? किस पर? शौहर पर मेहनत करे, बच्चों पर मेहनत करे, घर वालों पर मेहनत करे, अपने अपने आइज़ा, अपने अकारिब पर मेहनत करे। ये औरत की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, ये औरत की जिम्मेदारी है। इसलिए जहां मर्दों की जिम्मेदारी है अल्लाह के दीन की तबलीग करना, वहीं पर इस उम्मत की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है ये अल्लाह के दीन की तबलीग करे। और आखिरी बात कह करके बात मैं पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा हूँ। जो इज्तिमाआत होते हैं ना, जो जलसे जुलूस होते हैं ना, इनमें माल भी लगता है, पैसा भी लगता है, रकम लगता है। आप जानते हैं आपके घर में छोटा सा फंक्शन है, कार्रवाई है, बेटी दामाद आ गए हैं, तो आपकी दिन भर की मेहनत उनके पीछे होती है। ये जो मसाजिद में इज्तिमाआत होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं, इनके पीछे भी पैसा लगता है, माल लगता है। माल वालों से कहेंगे, मुखैरीन से कहेंगे आगे आइए और अल्लाह की राह में अपना माल लगाइए। ये माल किसी के पास रुकता नहीं है। बड़ों ने कहा यह हाथों का मैल है, मैल आज आपके पास है, कल आपके बच्चों के पास नहीं रहेगा। यह आज आपके बच्चों के पास नहीं है, कल आपके बच्चों के पास रहेगा इंशाअल्लाह। बोलो, ये किसी के पास माल रहने वाला नहीं है। इसलिए माल से ज्यादा मोहब्बत ना करो, माल को दिल में जगह ना दो, माल को हथेली में रखो, हथेली, माल को जेब में रखो, जेब में रखो। दिल में जगह दोगे ये माल तुम्हारे लिए फितना बन जाएगा। इसलिए अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह की राह में खर्च करो। हम कहते हैं मेरा जिस्म मर्जी अल्लाह की। क्या बोलते हैं? जिस्म मेरा मर्जी अल्लाह की, माल अल्लाह का, हुक्म भी अल्लाह का चलेगा। माल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, अल्लाह की राह में दीजिए। जानते हैं माल की मोहब्बत ये शराब के नशे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। एक शराबी अपने शराब से तौबा कर सकता है, एक माल का लालची मरते मरते भी माल की मोहब्बत उसके दिल से नहीं जाती। इसलिए अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको एक खुशखबरी